नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। 12 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हम सुर्खियों पर। और अब पेश है खबरों की तफसील। दफा 370 मामले पर अदालत उज़्मा में समाअत जारी है। सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक आर्टिकल 370 की मनसूखी को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर यौमिया बुनियाद पर समाअत जारी है और आज 13वें रोज समाअत जारी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की सरबराही में 5 जजों की आईनी बेंच इस मामले की समाअत कर रही है। बेंच में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी.आर. गवाई और जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल हैं। इससे कबल 2 अगस्त को जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की मनसूखी को लेकर समाअत शुरू हुई थी। अदालत उज़्मा में आज की समाअत के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच के सामने कहा कि यूटीए एक आर्जी है और इसके मुकम्मल रियासत बनने के लिए पेश रफ्त हो रही है। यूटीए एक मुकम्मल रियासत बनाने के मकसद से मरकजी स्कीम के अलावा दीगर सरमायाकारी की तजावीज़ 78,000 करोड़ और अब तक असल सरमायाकारी 2,153 करोड़ हो चुकी है। सॉलिसिटर जनरल ने मजीद कहा कि वो मुकम्मल रियासत का दर्जा देने के लिए सही वक्त बताने से कासिर है, लेकिन यूनियन टेरिटरी सिर्फ एक आर्जी रुझान है। सिर्फ जनवरी 2022 में 1.8 करोड़ सयाह आए हैं और 2023 में 1 करोड़ सयाह आए हैं। ये वो इकदामात हैं जो मरकज की तरफ से उठाए जा रहे हैं। मरकज सिर्फ उस वक्त तक ये कदम उठा सकता है जब तक ये यूटी नहीं है। मरकज इंतखाबात के लिए तैयार है, लेकिन रियासत और यूनियन के इलेक्शन कमीशन को ये फैसला करना है कि इसे कब कराना है और पंचायत इंतखाबात किस सतह पर पहले कराए जाए। It should have been like any other states. The central sector scheme investment is 28,400 crore. The investment proposals from other than central schemes is 78,000 crores. And till date, the actual investment made is 2,153 crores. Your Lordship did not write. I'll write it down and, my Lord, and give it to Your Lordships. Lord, several initiatives have taken place, and as a result of which the transparency, Lord, has shown us that the projects have risen from, and these are all, my Lord, statements on affidavit I have made, 9,229 in 2018, and now in 2023, it is 92,560. More and more people are participating in e-tendering and several e-initiatives, my Lord. And therefore, my Lord, that is also giving a boost, and the youth is gainfully employed. My Lord, the peace doesn't come merely by police action. There are several schemes which are introduced, several beneficial projects which are introduced. I'm just giving a bird's eye view, my Lord. And out of 53 projects under the Prime Minister Development Package, worth 58,477 crores, out of 53, 32 are completed. This is how progressively, my Lord, we are proceeding to make it a complete state. But I am unable to give, my Lord, my instructions are the exact time period right now about the complete statehood, while saying that union territory status is a temporary status because of the peculiar circumstances the state had passed through with repeated and consistent disturbances of decades. It might take some time, and we have shown, my Lord, the progress also. But very, my Lord, it was heartening for me also to note that only in 2022,
January 22 to December 22, 1.88 crores tourists visited. The lordships are aware the main industry so far was tourism in Jammu and Kashmir. Now, my lord, industries are coming. And till date in 2023, 1 crore tourists. It gives employment, it generates employment in various sectors. My lord, one, there is a tourism boom. So these are the steps which are being taken by the central government, which can be taken only if there is a union territory. And I have shown the Reorganization Act. It is having all trappings of the state. But the election, the government is ready. It is for the Election Commission of India and Election Commission of the state to take the call. Out of three, which election to take place first and how. The updating of the voters list is complete. Some part is missing, my lord, but it is yet to be over. It's in the process. It would be over, my lord, in a month or so, my lord. That's what I'm told. Thereafter, my lord, they will take a call considering the overall situation. To account these facts, because whether that's extremely relevant from our point of view. Because if your lordships had said earlier that subsequent facts will not be taken into account, we are dealing with the law, we are dealing with these facts. Mr. Sibal, these facts on what they have said would have possibly no bearing on the constitutional issue which has been argued. But even otherwise, But- because we have to counter those facts, Mullah. We had asked them a question on the roadmap for holding an election. That's fine, Mullah. That's what they have responded. But Mullah, That's what, my lord, in my That argument has- on merit. But our decision on the constitutional issue has to be on constitutional. But Mullah, these facts will go into the mind of the court because they are trying to show as to how this enormous change has taken place for the benefit of the people of Jammu and Kashmir. If you have 5,000 people under house arrest and 144 throughout the state, there can be no bun. So Mullah, my request to your lordships is, please don't enter into this arena because we will have to counter it with all kinds of facts, Mullah, which I don't think is necessary for this court. The nature of the development work which the government says has taken place post August 2019, this may not be of relevance to your constitutional challenge. And therefore, when they respond to the constitutional challenge, that has to be dealt with independent. I didn't rely upon it while But answering on these merit. facts, if they come into your lordships, Mullah, as part of the record, then that has. I think, Mr. Sibal, what the solicitor, to be fair to the solicitor, what the solicitor was saying is that the roadmap to full statehood would take a little time. That's obvious. Right now, that they are the development. There, his submission is that right now development work is taking place. Some stability has to be brought about. This is not a permanent arrangement, namely the UT status. They envisage that it will be a movement from UT to statehood again. We can't give you a fixed point of time when we will restore statehood, but they have told us the process which they are following on the path to full I have statehood. no objection to That- that statement. I have no objection. And that's how we read it. Yes, actually. well, if any other fact that you bring to your lordship's notice has no bearing, because I'll have to count Mr. it. Solicitor, Mr. Attorney, we take it that what you said, Solicitor, a short while back, is along the lines what we said. Yes, yes, That but this is- answer the election and The roadmap to statehood full- query, not as a Correct. I have justification no for. problems to that, Mr. Mullah. Sibal also fairly says that he has no difficulty about that. During my But he arguments says on that merits, this I has never happened. relied This upon. this cannot be an answer to the constitutional challenge. But even otherwise, it should I not also, be Mullah, into your didn't, lordship's mind, I- Mullah, that these are great things that are happening, Mullah, because today, the kind of drugs that are happening with the youth in Jammu Kashmir is unbelievable. But I don't want to enter into that controversy. Can I put it like this? The Neither, unemployment rate is enormous. Mr. Sibal, these are matters on which there can be and should be in a democracy policy differences, That's right. but that can't affect the constitutional Absolutely. answer to a constitutional Therefore, challenge. once you start placing these facts and Mullah, your lordship. But therefore, we place those facts which he mentioned in the perspective of the roadmap to statehood. That's all, and nothing on. This is on not the- a justification. This is not a justification. It cannot be, from our perspective, also to the answer to the constitutional challenge. We'll have to address the constitutional So your challenge. on lordship will allow constitutional me to grounds. place some counter facts to that? may I put it like this? Necessary, But Mr. I had intervened that stage also. चलिए इस खबर पे मजीद बात करने के लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट चलते हैं जहां हमारे साथ हमारे नुमाइंदे ताबिश कमाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ताबिश, जरा अपडेट कीजिएगा आज की कार्रवाई, जहां पर आज हुकूमत की जानिब से कुछ जवाब भी दिए गए हैं, जहां पर आज कहा गया है कि स्टेट होल्ड भी दिया जाएगा, उसके साथ साथ ही इलेक्शन भी मुनक्किद कराए जाएंगे, लेकिन उसके लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है।
क्या कुछ मजीद अपडेट्स हैं, क्योंकि कार्रवाई अभी भी जारी है? बिल्कुल गौहर, देखिए मैं आपको बता दूं कार्रवाई जारी है और आज कहा गया, जो उम्मीद हमें लगाई जा रही थी कि शायद आज टाइम फ्रेम, डेट फ्रेम कुछ दिया जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम शुरू से ये उम्मीद कर रहे थे कि आज सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से बताया जा सकता है कि स्टेट कब वापस मिलेगा, कब इलेक्शन होंगे, रोड मैप क्या है। वही जो पुरानी चीजें लगातार हम करते हैं, ये जो सुनते आए हैं बीजेपी की तरफ से, वही चीजें आज हमें कोर्ट में सुनने के लिए मिली है। हालांकि कपिल सिब्बल का आर्गुमेंट बहुत बेहतर लगा इस वक्त, लेकिन मेरे साथ में मुर्तुजा अहमद खान, सीनियर एडवोकेट, फॉर्मर एमएलसी भी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आज आप लोग अंदर थे, वही सवाल वही जवाब, मतलब कुछ नया लगा आपको कि कुछ नया हुआ? नहीं नहीं, आपने खुद ही जो कह दिया वही सच भी है। हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिस तरीके से परसों जिस वक्त कोर्ट क्लोजिंग की तरफ था तो जो इश्यूज रेज हुए थे तो उसमें एक्सपेक्टेशन ये थी, बल्कि चीफ जस्टिस साहब ने ये ऑब्जर्व किया था, एक्सपेक्ट किया था कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब आज के रोज किसी एक कंक्रीट टाइमलाइन के साथ आएंगे कोर्ट में, और लॉयर्स कम्युनिटी और पब्लिक एट लार्ज जो भी इसको व्यू कर रहे थे, उनके अंदर एक उम्मीद थी कि आज के रोज गवर्नमेंट अपना कोई ना कोई स्टैंड वाज़ेह करेगी और कोर्ट के सामने हमें ये मालूम हो सकेगा कि ये रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट और इलेक्शंस वगैरह ये कब हो पाएंगे। लेकिन वही घिसे पिटे पुराना वो जो हम आए रोज सुनते हैं, कभी पार्लियामेंट की किसी फ्लोर से, या कभी मीडिया में, या कभी किसी गवर्नमेंट के मिनिस्टर के मुंह से, मीडिया के जरिए से, किसी जलसे में जो वो एक जनरल किस्म की स्टेटमेंट आप लोगों के पास समय है रिजॉइंडर रिबटल में, क्या आप ये बात रखेंगे अब कि भाई जो सवाल पूछा गया उसका जवाब तो सीधा सीधा मिला नहीं है? देखिए, जहां तक कोर्ट की प्लीडिंग्स का सवाल है तो उसके लिए तो पिटिशनर साइड जो है तमाम सीनियर्स हैं, चाहे कपिल सिब्बल साहब हों, डॉक्टर धवन है, मुजफ्फर हुसैन बेग साहब रेगुलरली कई दिन से कोर्ट में हैं, जफर शाह साहब हैं, उसके बाद और भी बहुत सारे लोग हैं, दवे साहब हैं, सीनियर्स हैं, वो सारे प्रिपेयर्ड हैं। उनको पता है कि जो इन्होंने क्वेश्चंस या जो प्रोपोजिशंस इन्होंने दी हैं या जो आर्गुमेंट, जैसे कि आज तुषार मेहता साहब वो डेवलपमेंट का इंडेक्स लेके आ गए, और कभी एप्लीकेशन और यूथ की एम्प्लॉयमेंट, और ये वो फैक्ट्स हैं जो कंट्रोवर्ट हो सकते हैं और जिनकी बुनियाद ही कोई नहीं है। तो कोई भी कोर्ट ने शुरुआत में कहा था कि हमें आपके डेवलपमेंट वर्क या इस पर नहीं जानना है, हमें तो 370 और 35A का आईनी सबूत चाहिए जिस तरीके से हटाया गया। वो तो चीज यहाँ पर नजर नहीं आई अभी सरकार की तरफ से। वो वही इशू आज इंटरवेंशन कपिल सिब्बल साहब की थी, वो इसी वजह से वो इंटरवेंशन थी, जिस वक्त सॉलिसिटर जनरल साहब जो है वो डेवलपमेंट की चीजों को लेकर सामने आ गए और उस पर फैक्ट्स उन्होंने नरेट करना शुरू किए। तो उस वक्त इंटरवीन करके कपिल सिब्बल साहब ने रिमाइंड किया कोर्ट को कि ये वो एरिया है जिसमें कोर्ट को नहीं दाखिल होना चाहिए, क्योंकि ये केस के असल इश्यूज के साथ किसी तौर से भी रेलिवेंट नहीं है। तो फिर सिचुएशन यहाँ तक आ गई कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को ये ऑब्जर्व करना पड़ा कि जिस वक्त इस मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई थी तब से लेकर आज तक ये बड़े कॉर्डियल माहौल में ये चल रहा था, लेकिन आज जिस तरीके से इंटरवेंशन और क्रॉस इंटरवेंशन हो रही है, और सिब्बल साहब ने जनरली कहा कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से लॉयर्स नए फैक्ट्स और इररिलेवेंट फैक्ट्स को लेके कोर्ट के माइंड को प्रिजुडिस करने की कोशिश करेगी तो काउंटर फैक्ट्स जो है वो कोर्ट के सामने रखने जरूरी होंगे। तो इसी वजह से चीफ साहब ने उसमें इंटरवेंशन करके कहा कि ये हमारे पर्पसेस के लिए रेलेवेंट नहीं है, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज को डिसाइड करना है और हम उसी तक स्टिक करके रहेंगे। एक बहुत अहम सवाल ये भी है, अब तो बीजेपी की तरफ से वर्जन आ गया है, बीजेपी को इंचार्ज आशीष सूद ये कह रहे हैं कि हम तो शुरुआत से इस बात तो कह रहे थे और वही चीज आज कोर्ट में हम लोग कह रहे हैं कि हम तो इलेक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो अब आप लोग बताइए कि क्या जो सवाल बीजेपी बाहर कह रही थी वही कोर्ट में कह रही है, क्या इस पर आप लोग कुछ आगे कोर्ट के सामने तवज्जो में लेकर के आएंगे? देखिए, एक समझने की बात यह है कि इस मुल्क के अंदर डेमोक्रेटिक सेटअप में कॉन्स्टिट्यूशन हमारा यह प्रोवाइड करता है कि अगर किसी स्टेट के अंदर 356 को इन्वोक किया गया है और वहां पे गवर्नमेंट नहीं है तो इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो दोबारा से चलाने के लिए एक मैक्सिमम लिमिट जो है वो 3 साल की दी गई है और उसके अंदर अंदर इलेक्शंस होते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर आज पहली बार नहीं बल्कि इससे पहले भी एक एक्सेप्शन के सामने तौर पे हमारे सामने रहा है, जहां 7-7 साल 6-6 साल, अब की बार भी कमोबेश 4 साल बल्कि उससे ज्यादा हो चुके हैं, इलेक्शन नहीं हुए। तो हम बीजेपी के लीडर्स की उन कमिटमेंट्स को कैसे दुरुस्त माने? अगर ताबिश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और सीनियर वकील मुर्तजा खान का भी बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आज हम जहां पर आज 13वें रोज भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर दफा 370 पर समाअत इस वक्त भी जारी है, वहीं पर अब सॉलिसिटर जनरल की जानिब से जो बेंच है, आईनी बेंच, उसके सामने ये जवाब दिया गया है कि इलेक्शन भी होंगे,
रियासत का दर्जा भी बहाल किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई डेडलाइन मुकर्रर नहीं की गई है। और साथ ही साथ जिस तरह से वुकला के साथ बात की हमने मुर्तजा खान के साथ, उनका मानना है कि जो पहले ही इस तरह हमें उम्मीद थी कि सरकार की जानिब से ये कहा जाएगा, लेकिन उसके बाद भी इसका जवाब भी जो आने वाले दिन होंगे, चाहे मंडे को या ट्यूसडे को, वो दिया जाएगा। जो वकील हैं जम्मू कश्मीर की जानिब से और उनकी जानिब से या कपिल सिब्बल की जानिब से आज भी आर्ग्यू किया गया इस मामले को लेकर, जहां पर कुछ मामलात सामने रखेंगे। इस खबर पे बात करने के लिए हमारे साथ पीडीपी के तर्जुमान ताजीम डार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ताजीम, आज की जो कार्रवाई है अदालत उज़्मा के अंदर, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है आज की इस कार्रवाई के दौरान? देखिए, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो वहाँ पे कहा गया है, ये कोई नई बात तो वहाँ कह दी गई कि हम इसमें कोई रिएक्शन दें। 2019 5 अगस्त जब धारा 370 को एब्रोगेट किया गया था, तब से ये चीजें कही गई थी कि हम रियासत का दर्जा जो है वो बहाल करेंगे। तो आज 4 साल गुजर जाने के बाद भी अभी इनके पास कोई टाइम फ्रेम नहीं है। तो यहाँ से आप अंदाजा ये लगा सकते हैं कि कितनी नॉन-सीरियसनेस है और कितना लोगों को, जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग हैं, उनके साथ कितनी नाइंसाफी हो रही है कि जो भी डेमोक्रेटिक सेटअप में जो चीजें जरूरी होती हैं उनको बहाल करने की तरफ कोई भी तवज्जो जो है वो नहीं दी जा रही है। तो यहाँ से ये क्लियर होता है कि गवर्नमेंट जो है वो सिंसियर नहीं है डेमोक्रेटिक सेटअप को बहाल रखने में। वो किसी ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जम्मू कश्मीर को गवर्न करना चाहती है और उसका नतीजा ये है कि जितना ये यहाँ पे इनडायरेक्ट तरीके से गवर्न करेंगे, डेमोक्रेसी को पनपने नहीं देंगे, लोग उतने ही ज्यादा मुतनफर होते रहेंगे मरकजी हुकूमत के साथ और मरकज के ही पॉलिसीज के साथ। तो जिस तरह से आप देख भी रहे हैं कि जम्मू में एहतजाजों का सिलसिला जारी है, जिस तरह से उसी तरह से लद्दाख में है, करगिल में है, जम्मू में है, कश्मीर में है। तो ये चीजें जितनी जल्दी हो सके जो डेमोक्रेटिक सेटअप में ये लोगों की नुमाइंदगी लोगों के हाथों में दी जाए और फैसला लोग अपने मुकद्दर का, अपने मामलात का फैसला खुद करें। कोई ब्यूरोक्रेसी से या ब्यूरोक्रेटिक सेटअप से कोई फैसले जो दिए जाते हैं वो पायदार नहीं रहते हैं, उनसे लोगों को किसी तरह से भी आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए जितनी जल्दी हो सकेगा जम्मू कश्मीर की भागदौड़ जम्मू कश्मीर के लोगों के हाथ में दी जाए। और जिस तरह ये क्लेम भी किया जाता है कि यहाँ नॉर्मलसी है, सब ठीक है। अगर सब ठीक हो चुका है तो फिर देर किस चीज की है? फिर टाइम फ्रेम फिक्स क्यों नहीं हो पा रहा है? फिर हर चीज को आप लटका के क्यों रख रहे हैं? इसलिए ये कोई चीजें नहीं है और ये जो है जम्मू कश्मीर के साथ सचेला व्यवहार जो है ये किया जा रहा है और यहाँ के लोगों को खुदा जाने की चीज की सजा दी जा रही है। और यहाँ के लोग जो हैं वो जहनी तौर पर, जज्बाती तौर पर बहुत ज्यादा मफलूज हो चुके हैं जो पॉलिसीज हैं उसकी वजह से। ताजिम साहब, जिस तरह से अब माना जाता है, जहां पर आज भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये कहा गया कि इलेक्शन भी होंगे, रियासत का दर्जा भी, क्या आपका मानना है कि 2024 से पहले इंतखाबात होंगे, असेंबली इंतखाबात, या पहले यूएलबी या पंचायती इंतखाबात होंगे, उसके बाद ही जो असेंबली इंतखाबात है वो होंगे? देखिए, ये कोई आप हमें कोई स्पेशल चीज देने जा रही है। इलेक्शन तो होने चाहिए थे। ये तो 2019 लास्ट इलेक्शन 2014 में हुआ है जम्मू कश्मीर में। 2014 से लेकर आज 2023 है, कहाँ है इलेक्शन? आप यहाँ पे नाम निहाद तरीके से जो बल्दियाती इलेक्शन को आके या फिर आप पंचायतों के इलेक्शन को आके ये साबित करना चाहते हैं कि ये नुमाइंदगी लोगों की हो पा रही है। वो नहीं है। ये इलेक्शन जो होते हैं, छोटे इलेक्शन, ये लोगों के छोटे मोटे मामलात जमीनी सतह पे जो होते हैं उनके लिए होते हैं। लेकिन आप वसी तौर पर अगर सोचें जो लोगों की सही नुमाइंदगी है, जब तक यहाँ की असेंबली बरसरे नहीं आएगी सामने, तब तक आप कैसे लोगों को कह सकते हैं? आप लोगों की लीडरशिप, जो अवामी लीडरशिप है जम्मू कश्मीर की, सही मायने में जो तर्जुमानी करती है लोगों की, उसको आप साइडलाइन करके ये कहते हैं कि आप यहाँ के नया जो सिस्टम चलाना चाहते हैं। ऐसी चीजें नहीं चलती है डेमोक्रेटिक सेटअप में। आपको डेमोक्रेसी या इन फुल फॉर्म देनी है। ये 50% डेमोक्रेसी कुछ नहीं होती कि हम आपको आधी दे रहे हैं, आधी से आपको महरूम रखा जाएगा। इसलिए डेमोक्रेसी पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में पनपे। यहाँ पे इलेक्शन कोई हमारे लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होने जा रहा है। ये तो होने चाहिए थे, ये नहीं करवाए जा रहे हैं। इसलिए ये कोई सुप्रीम कोर्ट में जो चीजें कही गई हैं आज, वो कोई नई चीजें नहीं कही गई हैं। उन्हीं को चीजों को तोड़ मोड़ के दोबारा से पेश किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि मरकजी हुकूमत को इसके ऊपर फौरी तौर पर सोचना चाहिए और
लोगों तज़ीम डार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। इस वक्त हमारे साथ है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के तर्जुमान सलमान निज़ामी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निज़ामी साहब, आज की पहली रिएक्शन, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ जवाब दिया गया है हुकूमत की जानिब से कि इलेक्शन भी होंगे, रियासत का दर्जा भी बहाल होगा और 2023 या 2022 के अंदर करोड़ों टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आए हैं, क्या कुछ पहला रिएक्शन होगा आज की इस जहां पर कार्रवाई हुई है? देखिए, सबसे पहले जिस तरीके से कपिल सिब्बल साहब ने जम्मू कश्मीर की आवाम की वकालत सुप्रीम कोर्ट में की, वो काबिल तारीफ है। और दूसरी बात, जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट आज जस्टिफाई नहीं कर रही है कि जिस तरीके से आर्टिकल 370 अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हटाया गया, और ये बात जो है ये होम मिनिस्टर अमित शाह जी, उन्होंने पार्लियामेंट में भी कहा कि हम स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे, इलेक्शन करवाएंगे, लेकिन ये सरकार सिर्फ बोलती है लेकिन करेगी कब, उसकी कोई खबर नहीं, उसका कोई पता नहीं। तो इसलिए जिस तरीके से नॉर्मलसी का दावा हुकूमत ने किया है, तो उससे साफ जाहिर होता है कि जो आर्टिकल 370 हटने के बाद भाजपा के नेताओं ने दावे किए थे कि जम्मू कश्मीर से मिलिटेंसी खत्म होगी, लेकिन पूरी तरीके से मिलिटेंसी खत्म नहीं हुई है। सिलेक्टिव किलिंग्स आपने देखी, माइग्रेंट लेबरर्स का कत्ल हुआ कश्मीर में हाल ही में, कई हादसे ऐसे हुए, तो वो दावे बेबुनियाद साबित हुए। न रोजगार मिल रहा है, न तरक्याती काम उस स्पीड से हो रहे हैं, जो पुराने काम थे उनको ही आगे बढ़ाया जा रहा है। तो इलेक्शन सबसे पहले जो है सरकार को करवाने चाहिए अगर नॉर्मलसी हुई है। ये दावे तो पहले से ही सरकार कर रही है कि हम करेंगे इलेक्शन, लेकिन ये तय नहीं कर पा रही है कि कब होंगे। अभी आप देखें, जब इलेक्शन का वक्त होता है तो उसमें मौसम बेहतर होना चाहिए। एक चीज यहाँ जानना चाहूंगा, सरकार कह रही है कि जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर हैं, ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर यही कहा जा रहा है कि जब हालात ठीक होंगे तो उसके बाद ही इंतखाबात होंगे। नहीं, वही मैंने यही जिक्र किया कि अगर सरकार खुद कंफ्यूज है, उनका कोई स्टैंड नहीं है, अगर हालात ठीक है तो फिर इलेक्शन करवाइए ना, अनाउंस करवाइए। आप कह रहे हैं कि हम स्टेटहुड अभी नहीं बहाल कर सकते, तो फिर आपने दावा क्यों किया था कि जैसे ही नॉर्मलसी आएगी हम स्टेटहुड? दैट मीन्स कि सरकार कंफ्यूज है, जम्मू कश्मीर को हैंडल करने में वो फेल हो चुके हैं। अभी तक 3 सालों में 3 गवर्नर चेंज हुए हैं। पहले गवर्नर ने दावे किए थे हम रोजगार देंगे, ये काम किए, वो चले गए, दूसरे आए वो भी चले गए, अब तीसरे जो हैं वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो 3 सालों में आर्टिकल 370 के हटने के बाद सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स हुए, लेकिन जो हकूक जम्मू कश्मीर की आवाम को हिंदुस्तान ने ही दिए थे वो हकूक छीने गए। आप आज कहते हैं हम पीओके को लाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान की बात अगर करें तो उसमें पाकिस्तान ने उनको प्रोविंस का दर्जा दिया, हमारी स्टेट थी, हमें यूटी में लाया। तो अगर नॉर्मलसी है तो इलेक्शन क्यों नहीं? आप देखिए, मौसम जो है अब खराब होगा, सर्दियों का मौसम है, इसमें इलेक्शन तो नहीं हो सकते। अब आप कह रहे हैं कि पंचायत होंगे, वो भी कोई टाइम फ्रेम नहीं है, वो पंचायत इलेक्शन कब हो, उसके बाद म्युनिसिपैलिटी। तो ये लंबा मुझे खींचने का मुझे लगता है एक साजिश के तहत बीजेपी जो है चाहती है कि किस तरीके से डेलिब्रेटली जम्मू कश्मीर की आवाम को परेशान किया जाए और उनके हकूक जो है वो हासिल करने से महरूम रखा जाए। जो हकूक, देखिए, अगर एक्सक्यूज है आपका नॉर्मलसी का, तो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद है, वहां भी तो इलेक्शन हुए हैं। मिलिटेंसी का मुकाबला पहली हुकूमतों ने भी किया। जब गुलाम नबी आजाद साहब चीफ मिनिस्टर थे, जम्मू सूबे में 0% मिलिटेंसी आजाद साहब के दौरे हुकूमत में हुई। तो वो एक्सक्यूज आप नहीं कर सकते कि भाई मिलिटेंसी है। चलिए, बहुत शुक्रिया सलमान निज़ामी आपका। ये थे डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के तर्जुमान सलमान निज़ामी। अब जरा नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान नबी डार का पहला रिएक्शन नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या कुछ होगा? आज जिस तरह से हुकूमत की जानिब से, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के अंदर आईनी बेंच से कहा गया है कि रियासत का दर्जा भी बहाल होगा, इंतखाबात भी होंगे, लेकिन उसके लिए जो इलेक्शन कमीशन है वो फैसला करेगी, उसके साथ साथ ही रियासती इलेक्शन कमीशन है वो भी फैसला करेगी। हालात भी ठीक है, करोड़ों सयाह जम्मू कश्मीर के अंदर इस बार आए हैं, खासकर वादी कश्मीर। आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस का पहला रद्द-ए-अमल क्या होगा? देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। जो हमारा पिटीशन है वो क्लियरली बोलता है कि स्ट्राइक डाउन होना चाहिए। हमने पिटीशन जो सुप्रीम कोर्ट में डाला है दैट इज अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ August 5, 2019।
जो हमने क्लियरली बोला है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और हमारा जो सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी अर्जी है दैट इज फॉर रिस्टोरेशन ऑफ अगस्त 4 पोजीशन। हमने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच नहीं किया फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्शन, जबकि हालांकि हमने हमेशा ये बोला है कि यहाँ पे रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम बहुत जरूरी है, दैट वी हैव बीन सेइंग, बट वी हैव नॉट अप्रोच सुप्रीम कोर्ट फॉर इलेक्शंस ओनली। वो गवर्नमेंट का एक प्रेरोगेटिव है। जो एसजी ने सॉलिसिटर जनरल ने जो स्टेटमेंट दिया है, मुझे लगता है कि इसका मकसद है कंफ्यूजन क्रिएट करने का और जो मेन इशू है उससे मतलब लोगों की सोच उससे दूर करने का। मेन इशू क्या है कि अगस्त 5 का जो डिसीजन था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और हमने उसके खिलाफ ही वी वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट दैट डिसीजन ओनली। और ये स्टेटमेंट आज जो एसजी का आया आपको देखना पड़ेगा, ये कोई नई बात नहीं है, ये पिछले 4-4.5 साल से बस यही बात कह रहे हैं। तो मतलब जब अब हमारा रिबर्टल का टाइम आएगा हम तब हमारे काउंसिल तब उस टाइम पे पूरा जो है डिटेल में उनको जवाब दें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थी नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार, जिनका मानना है कि गुज़िश्ता 4 सालों के दौरान भी सरकार यही दावे कर रहे हैं कि एक तरफ कह रहे हैं कि हालात ठीक हैं तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा जा रहा है कि जब हालात ठीक होंगे तो जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात भी होंगे, यूएलबी, पंचायती सभी इलेक्शन होंगे, उसके साथ साथ ही रियासत का दर्जा भी बहाल होगा। लेकिन आज जिस तरह से सॉलिसिटर जनरल की जानिब से कहा गया है कि रियासत का दर्जा बहाल होगा, इंतखाबात होंगे, लेकिन उसके लिए कोई टाइम फ्रेम या कोई डेडलाइन मुकर्रर नहीं की गई है। ये जो हिज़्बी इख्तिलाफ की जमातें हैं उनकी जानिब से कई खदशात और सवाल भी उठाए गए हैं। अब ज़रा इस खबर पे हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अल्ताफ साहब, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज सॉलिसिटर जनरल की जानिब से जो जवाब दिया गया है, आपका रिएक्शन क्या कुछ रहेगा आज की समाअत की कार्रवाई की जो आज समाअत हुई है? देखिए, मैं आउट ऑफ कहीं हूँ तो सॉलिसिटर जनरल की रिएक्शन है। अगर एक बार आप मुझे बताएंगे, मैंने सुना ही नहीं क्या उन्होंने बोला है। सॉलिसिटर जनरल की जानिब से जवाब दिया गया कि इलेक्शन भी होंगे, रियासत का दर्जा भी बहाल होगा और इसका फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा। उसके साथ साथ ही रियासती इलेक्शन कमीशन वो भी फैसला करेगा। हालात का जिक्र उन्होंने किया कि हालात ठीक होने के बाद ही ये सब होगा। कहीं ना कहीं जो दो बयान सामने आते हैं, पहले भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि जम्मू कश्मीर के हालात बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह कहा जा रहा है कि हालात ठीक होंगे, उसके बाद इलेक्शन होंगे। लेकिन आज जो कहा गया है कि रियासत का दर्जा भी बहाल होगा, इंतखाबात भी होंगे और करोड़ों टूरिस्ट जो जम्मू कश्मीर के अंदर आए हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि जहां तक इलेक्शन का ताल्लुक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कराना ऑटोनमस बॉडी है, कब कराना है, कैसे कराना, ये उनका प्रेरोगेटिव है और भारतीय जनता पार्टी का इसके साथ कुछ लेना है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार है, क्योंकि अगर आप 2014 का उठाकर देखेंगे और उसके बाद जो डीडीसी इलेक्शन हुई है तो भारतीय जनता पार्टी सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी और सबसे ज्यादा बड़ा वोट शेयर जो लिया है। और जो हमारा टारगेट है वो टारगेट है 50 पार। हम चाहते हैं कल ही ये इलेक्शन आ जाए और लोग निकले, वोट डाले और जो 50 पार का नारा हमने दिया है, हमें यकीन है वो कंप्लीट होगा। जिस तरह से हमने पिछले 9 साल में गवर्नमेंट की, जो हमने यहाँ स्कीमें मोदी जी ने स्कीमें राइज की, जिस तरह से यहाँ लोगों को राहत हड़तालों से, स्टोन पेल्टिंग से, गोलियों से, बमों से, धमाकों से, और आज आप देखिए रात के 1-1 बजे तक दुकानें खुली रहती है और लाल चौक में आना जाना रहता है। और सबसे बड़ी अचीवमेंट देखिए, जहां G20 समिट होना, अगर कोई क्लर्क भी फॉरेन कंट्री से आता तो यहाँ हड़ताल होती थी, न वो गिलानी की कार रही, न वो यसीन मलिक रहा। ठाकुर साहब, यहाँ पे रोकना चाहूंगा क्योंकि अपोजिशन की जानिब से इसी पे सवाल उठाए जा रहे हैं। जहां सरकार का मानना है कि हालात ठीक है, लेकिन अदालत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये कहा जा रहा है कि हालात जब ठीक होंगे इलेक्शन होंगे, तो इसका मतलब है कि हालात ठीक नहीं है। ये अपोजिशन का भी सवाल वहीं पर उठा रहे हैं और जिस तरह से आज कहा गया है, उनका मानना है कि ये गुमराहकुन बयान है अवाम को गुमराह करने के लिए, क्योंकि मामला 370 का है। लेकिन इस तरह से ये कहना कि पहले हालात ठीक हैं, उसके बाद अदालत के अंदर कहना कि हालात ठीक नहीं है, हालात ठीक होंगे तो इलेक्शन होंगे। देखिए, जहां तक हालात ठीक होने का जो आपने क्वेश्चन किया है, इसका सबसे बेहतरीन जवाब अगर कोई दे सकता है तो वो जनाब उमर अब्दुल्ला दे सकता है, जो पहली बार 33 साल में 1 किलोमीटर चल के ऑफिस चले गए। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लिख सकता है कि कितने हालात यहाँ ठीक है।
नंबर 2, जहां तक आप बात कर रहे हैं 370 की, देखिए हर एक की जो राय है वो बड़ी अहमियत भी रखती है और हर एक राय का एहतराम भी करना है, और हर एक राय का एहतराम करते हुए जी जहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सब उसका रेस्पेक्ट करे और उस फैसले का इंतजार करते हैं, लेकिन अब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इशू को डाइवर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो हेयरिंग्स आज सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, जिस तरह से सॉलिसिटर जनरल ने भी स्टेटमेंट दी, और जो हेयरिंग्स के हिसाब से चलता है, मुझे लगता है ये पॉलिटिकल पार्टियां अब समझ चुकी है कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए उन्होंने स्टेटहुड का जो क्वेश्चन है वो उठा दिया ताकि लोगों का अटेंशन डाइवर्ट किया। और जहां तक स्टेटहुड का ताल्लुक है, देश के गृह मंत्री ऑन द फ्लोर कहते हैं कि मौजून वक्त पे स्टेटहुड वापस दिया जाएगा, ये एक हकीकत है, और वैसी ही हकीकत है जैसे 370 से ज्यादा एमपीज ने 370 को ऑन द फ्लोर एब्रोगेट किया है। और जहां तक इलेक्शन का ताल्लुक है, देखिए इलेक्शन के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार थी, और हम चाहते ही आज ही अनाउंसमेंट हो और हम इलेक्शन करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी स्ट्रेट थी, हमारा एजेंडा था देश की एकता और देश की अखंडता के लिए 370 हटाना, हमने करके दिखाया। हम दोगली पॉलिसी नहीं निभाते हैं, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा। लेकिन चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ ठाकुर साहब आपका। ये थे भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान, जिनका मानना है कि हालात भी ठीक है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जिस तरह से वजीर दाखिला ने ऐवान के अंदर कहा है कि जब हालात मौजू वक्त पे ही स्टेटहुड भी दिया जाएगा और उसके साथ साथ भी इंतखाबात भी होंगे, लेकिन इंतखाबात का फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को करना ही होगा। नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।